Hello students, welcome to the English class. I hope you all are safe and healthy. Students, in earlier classes, we came to know about the usage of is, am and are. This is the fifth chapter of English grammar. So we also learned the meaning of these words. Let's see what we have learned. Use of is. Meaning of this is to exist, to be something, यानी किसी भी चीज का होना. We use is with singular nouns and pronouns. is का यूज हम सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ करते हैं. सिंगुलर मीन्स सिंगल, जो एक हो. नाउन्स लाइक अर्श, विवोनु, रिया, गोवा, टॉय, चाइल्ड, etc. Name of person, place or thing. And pronouns he, she और it. हम इन सब के साथ is का यूज करते हैं. Now next, use of am. Meaning will be the same, to be something, to exist. We use am with pronoun I only. am का यूज हम हमेशा ही I के साथ करते हैं और I भी एक प्रोनाउन है. Examples are given here. I am a teacher, I am a singer, I am going to market, I am proud of you, I am enjoying it, I am the eldest one. So we came to know we use am with always I. Now next, use of are. We use are with plural nouns and pronouns. What is the meaning of plural? Plural means many. For example, children, birds, houses, peacocks, monkeys, gardens, Arna and Yuvraj, etc. And plural pronoun means they, we and you. These are plural pronouns. So students, we have learnt all these things in earlier classes. Now in this session, we will complete the book exercise of chapter 5. So take out your English grammar and open the page number 22. Shall we start now? Okay. Question number 1. It is here at the last. Fill in the blanks with is, am, are. What you have to do, students? You have to read the sentence first. Number 1 is, my mother dash a homemaker. We are talking about only one mother. That is my mother. So, what will be the answer? The answer is. My mother is a homemaker. Number 2, I dash proud of you. Now tell me, I के साथ क्या यूज करते हैं? Am. I am proud of you. Now next, number 3, children dash innocent. This is plural form of child. तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं? जो बहुत सारे हैं, मैनी है, उनके साथ क्या यूज करते हैं? आर. चिल्ड्रन आर इनोसेंट. नंबर 4, दीज कार्स डैश इको फ्रेंडली. ये कार इको फ्रेंडली हैं. सो व्हाट विल बी द आंसर? देयर आर मैनी कार्स, नॉट ओनली वन कार, मैनी कार्स. So we will use
are here. A-R-E-R. Number 5. Geeta dash my friend. Geeta is the name of only one girl. So, we will write here is. Now, next sentence. She dash my classmate also. She, we are talking about her only. हम गीता के बारे में ही बात कर रहे हैं कि वो मेरी फ्रेंड है और वो मेरी क्लासमेट है. तो एक ही के बारे में हम बात कर रहे हैं. देन वी विल यूज इज. शी इज माई क्लासमेट ऑल्सो. नाउ नंबर 6. देयर डैश अ ट्री बिहाइंड माई हाउस. मेरे घर के पीछे एक पेड़ है. एक पेड़ है. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन ट्री. So, we'll write here is. There is a tree behind my house. Now, 7 number. There dash many books on the shelf. अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले वाले 6 में भी देयर था, 7th में भी देयर है, तो हम इज यूज करेंगे. नो, 6 में हमने एक ही पेड़ की बात कही थी. अ ट्री बिहाइंड माई हाउस, एक ही पेड़ है. पर 7th में मैनी बुक्स, तो मैंने बताया था आपको मैनी के साथ क्या यूज़ करना है. जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो एट दैट टाइम विल यूज आर. देयर आर मैनी बुक्स ऑन द शेल्फ. शेल्फ में बहुत सारी बुक्स हैं. नंबर 8. यू डैश गुड एट स्टडीज़. आप पढ़ाई में अच्छे हैं. यू इज़ अ plural pronoun. So, we'll write here are. You are good at studies. Now, next 9 number. This food dash stale. This food, we are talking about only one. So, we'll write here is. This food is stale. I dash not eating it. I. Again I. क्या होगा I के साथ? क्या लिखेंगे? I am not eating it. ये खराब है, बासी खाना है, मैं इसे नहीं खा रही हूँ. Now 10 number. These birds, there are many birds, dash hungry. These birds are hungry. We are talking about many birds. My mom dash giving them grains. मेरी मम्मी उनको अनाज दे रही हैं. My mom, तो एक ही मम्मी है, मेरी ही मम्मी है बस. My mom is giving them grains. Have you completed? Okay. Now question number 2. Complete the sentences by filling the blanks with is, am, are. आपको इन सेंटेंस को is, am, are लिखकर फिल करना है, यानी कंप्लीट करना है. Now number 1 is peacock dash our national bird. There is only one peacock. So we'll write here is. Peacock is our national bird. It dash very beautiful. It के साथ क्या आएगा? He, she, it के साथ क्या आता है? Is. It is very beautiful. These peacocks dash dancing. ये मोर बहुत सारे हैं, पिकॉक नहीं है, अब पिकॉक्स हो गए हैं वो. तो what we will write here? These peacocks are
dancing. ये मोर नाच रहे हैं. They dash spreading their wings and feathers. They क्या है? This is plural pronoun. They, we, you है ना, प्लूरल प्रोनाउन है ये. इसके साथ क्या आएगा? यानी इसमें हम बहुत सारों की बात कर रहे हैं, एक की बात नहीं कर रहे, मैनी की बात कर रहे हैं. सो विल यूज हियर आर. दे आर स्प्रेडिंग देयर विंग्स एंड फेदर्स. वो अपने विंग्स और फेदर को फैला रहे हैं. नाउ टेल मी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंग्स एंड फेदर्स? फेदर्स और विंग्स में डिफरेंस क्या है? विंग्स वो होते हैं जो बर्ड का बॉडी का हिस्सा होते हैं. जैसे हमारे हाथ है ना, वैसे ही विंग्स उनके लिए हाथ का काम करते हैं. ये उनकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं उड़ते समय और उनको डायरेक्शन देते हैं. और फेदर्स वो होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और उनकी बॉडी पर सब जगह होते हैं, यानी पूरी बॉडी उससे कवर्ड होती है. बर्ड की जो पूरी बॉडी कवर्ड होती है और उसी फैदर से वो अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं. फैदर जिस कलर के होंगे तो वही कलर उनका बॉडी का दिखता है. यानी फैदर्स बहुत सॉफ्ट होते हैं और पूरी बॉडी उससे कवर्ड होती है. और विंग्स होते हैं जिससे कि वो उड़ते हैं. और जैसे हमारे हाथ है ना, वैसे उनकी बॉडी का ऐसा हिस्सा होता है जो उनको उड़ने में मदद करता है और उसके उनके उड़ान को कंट्रोल करता है और उनका स्पीड डायरेक्शन देता है. ठीक है बच्चों? ओके. नाउ आई डैश वॉचिंग देम. आई के साथ फिर अगेन व्हाट वी विल यूज? आई एम वॉचिंग देम. मैं उनको देख रही हूँ. नाउ 2 नंबर. This dash Sonali. This Sonali is only one girl. एक ही लड़की की बात हो रही है. तो क्या आएगा? This is Sonali. She dash a smart girl. अब अभी भी हम उसी की बात कर रहे हैं. She is a smart girl. Her parents dash doctors. उसके माता पिता, केवल माँ नहीं है, दोनों हैं, माता पिता, पेरेंट्स. सो विल राइट हियर आर. हर पेरेंट्स आर डॉक्टर्स. नेक्स्ट वन इज सोनाली डैश इंटरेस्टेड इन सिंगिंग. सोनाली को गाना गाने में इंटरेस्ट है. तो सिर्फ सोनाली है, अकेली हम उसकी ही बात कर रहे हैं. तो सोनाली इज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग. शी डैश अ डांसर टू. वह डांसर भी है. तो अभी भी हम सोनाली की ही बात कर रहे हैं और यू नो शी के साथ हम क्या यूज करते हैं? ही, शी, इट के साथ इज. सो विल राइट हियर इज. शी इज अ डांसर टू. Her teachers dash proud of her. टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स हैं. एक टीचर नहीं करता उस पर प्राउड, बहुत सारे टीचर्स, यानी सारे टीचर्स का उस पर प्राउड करते हैं. सो विल राइट हियर आर. हर टीचर्स आर प्राउड ऑफ हर. नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क. You can take the help of these answers. I have already written over here. You can match your answer with it. Okay. Now complete your work. We'll meet again in next class. Till then, stay home, stay safe. Thank you.